Hello everybody, I CS Sandeep Desarda welcomes to all of you once again for your basic accounting concept series. Friends, in the previous lecture we discussed how to identify the nature of account. Basically पूरा का पूरा account जो है basically तीन rules पर depend करता है as real, nominal and personal. So we identified the nature of account, how to identify that nature of account that we discussed. Real account, it means account related with your all assets, properties, धन संपत्ति जिसे हम कहते हैं, that is your real account. Personal account, it means the person, it can be live person or it can be artificial person or it can be representative category. And in nominal account we saw that all the expenses, losses and income and gain type all accounts get covered under your nominal. So basically there are three types of accounts: real, nominal and personal. Now friends, today we are going to discuss how to record the transaction in the books of account. Ultimately transaction record करते हैं तो करते कैसे हैं, ठीक है? So while recording that transaction in the books, it is called as a passing journal entry. मतलब basically what happens, we have a lot of transactions, ठीक है? अब वो transaction हमें books में record करने हैं. मतलब जैसे आप लोग कुछ लिखते हो ना book में, वैसा वो जो transaction book में आपको record लिखना होता है. So जिस book में आप ये transaction लिखते हो, that book is called as a journal. That book is called as a journal. Just a minute. Yeah. Any transaction is to be recorded. That book is called as a journal. ठीक है? Now do remember, it is a primary book of entry. और इस जर्नल में आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, that is called as a journal entry. बुक को कहा जाता है जर्नल, और जो आप एंट्री लिखते हो उसे कहा जाता है जर्नल एंट्री. ठीक है? After recording the transaction in journal, we are doing a posting of that transaction in another book that is called as a ledger. जो एक बार डिस्कस होगा, आगे का पार्ट रहेगा. Now today we are going to discuss how to pass journal entry. So entry कैसे पास की जाएगी? ये डिपेंड करता है कि जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स हैं, whether it is a real, nominal or personal. Identify the account, identify the nature of account, and on the basis of golden rules of this real, nominal, personal, we have to pass entry. So friends, please write down. ये इस तरह का आपका नोटबुक का पेज है, मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है? So please write down real account, gathering golden rules, in that number 1, real account. See, for every transaction there is a debit and credit effect. That account is either to be debited or credited. Now how to decide whether that particular account is to be debit or credit? If that account is real, then in what circumstances that account to be debited or credited? ठीक है? धीरे धीरे आगे चलते रहिए, so automatically आपको clear होते जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं. So write down real account, write down the rule. It is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. It simply says, if the account is real, just check is it comes in or goes out. If it comes in, debit. If it goes out, it's a credit. अगर आया तो debit, गया तो credit. Got it? Now how to record this entry? Listen, do one thing. Number 1 real, then write down personal account, leave 3-4 lines, and then nominal account.
अभी इसके लिए स्पेस छोड़ दें, अभी मैं पर्सनल और नॉमिनल पे बाद में आ जाऊंगा, पहले हम रियल को समझते हैं पहले से, ठीक है। सो राइट डाउन हियर, लेट्स से एग्जाम्पल हम यहां से डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लेट्स से ट्रांजैक्शन इज गिवन टू यू, machinery purchased for cash rupees 10,000. This is the transaction given to you. Now of this transaction, how to pass the entry in a journal. So how to pass journal entry, that part we are going to discuss. See that now machinery purchase for cash rupees 10,000. So what you will have to do, सबसे पहली स्टेप जो होती है ना for any transaction, see for any transaction given to you, first step, identify two accounts. Number 2, identify nature of account, whether it is real, nominal or personal, and determine account to be debited or credited. और ये जो अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कैसे करना है ना सर, इसके लिए जो हमारे पास होते हैं ना, दैट इज व्हाट योर गोल्डन रूल, ठीक है। नाउ हियर मशीनरी परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000, शुरुआत में एक दो ट्रांजैक्शन तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट वंस वी स्टार्ट ना इट विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ मशीनरी परचेज फॉर कैश, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई द टू अकाउंट इन दिस ट्रांजैक्शन। कौन से दो अकाउंट्स है, अगर आप देखें तो हमने मशीनरी परचेज की और हमने कैश दी, मशीनरी परचेज एंड कैश पेड, इसका मतलब यहाँ पर दो अकाउंट्स हैं, वन इज योर मशीनरी एंड वन इज अ कैश। सो इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर विल बी एटलीस्ट टू अकाउंट्स, there will be at least two accounts. Sometimes there can be 3 or 4 accounts can also be there, but 99% cases there will be only 2 accounts. So identify that 2 accounts. So यहाँ पर accounts हमने identify किया, one is a machinery and one is a cash. The second point, identify the nature of account. अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट है सर, एक है मशीनरी, एक है कैश। मशीनरी, इट इज माई प्रॉपर्टी असेट, सो ये मेरा रियल अकाउंट है। कैश, सर ये भी मेरा प्रॉपर्टी है, असेट है, धन संपत्ति है, ये भी मेरा रियल अकाउंट है। सो ये दोनों अकाउंट्स आपके रियल हैं, गॉट इट। अब रियल का रूल क्या है, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मशीनरी कैश, ये मैंने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, फिर मैंने इसका नेचर आइडेंटिफाई किया, दोनों रियल अकाउंट है। नाउ व्हाट आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस मशीनरी एंड कैश आउट ऑफ विच इज टू बी डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड। तो इसी के लिए हमारा रूल होता है, रूल क्या कहता है, रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट। नाउ वी परचेज द मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की, सो मशीनरी हमने परचेज की, सो मशीनरी कम्स इन, और हमने कैश दी, मतलब कैश गोज आउट, बराबर है। मशीनरी आई, सो मशीनरी को किया जाएगा डेबिट, और कैश गोज आउट, इसलिए कैश को किया जाएगा क्रेडिट। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इन दिस ट्रांजैक्शन मशीनरी अकाउंट को आएगा डेबिट और कैश को आएगा क्रेडिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ठीक है। सो अब एंट्री कैसे लिखी जाएगी, एंट्री कैसे लिखी जाएगी, देखिए इसका एक लिखने का एक तरीका है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसी तरीके से इस एंट्री को लिखा जाएगा। सो हाउ इट विल बी, इसलिए मैंने जानबूझ के आपका जो नोटबुक का पेज है ना, वो उस तरह का फॉर्मेट मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। सो इन दैट हाउ टू रिकॉर्ड दिस एंट्री, ठीक है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, सो डेबिट वाला पार्ट जो है इट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश को क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो नेक्स्ट टाइम पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे लिखते हो तो आप थोड़ा सा स्पेस स्टार्टिंग में छोड़ देंगे। सर ये क्यों छोड़ना पड़ता है, एज आई ऑलरेडी सेड, इट इज अ ट्रेडिशन, इट इज अ सिस्टम। लुका पैसियोली फ्रॉम इटालियन, द मैथमेटिशियन एंड द अकाउंटेंट। So Luca Pacioli considered as a father of your accountancy, and when he drafted the entry at that time,
don't know what he thought, and he said कि that debit वाला part जो starting से लिखा जाएगा, credit वाले में आप थोड़ा सा space रखेंगे. So that tradition we are following here. So here for the credit leave the some space and then say to cash account. To cash account. Please do remember account का spelling आप सबको आता है ACCOUNT, but that is not required. Account का मतलब यहाँ पर A/C लिखा जाएगा. टू कैश अकाउंट यहाँ आपको क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं लिखना है. जैसे ऊपर आप डेबिट लिखते हो वैसे नीचे क्रेडिट लिखना है, बिल्कुल नहीं. जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर उसी तरह से आपको एंट्री लिखनी है. अमाउंट कितनी है ट्रांजैक्शन की? 10,000. सो दिस इज द अमाउंट 10,000. बेसिकली यहाँ जो मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉलम होते हैं, वन इज अ डेबिट कॉलम एंड वन इज अ क्रेडिट कॉलम. ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए नहीं है, बट जो मैंने डेबिट के आगे 10,000 लिखा है उसके आगे मैंने डैश किया, मतलब क्रेडिट में डैश किया है. और नीचे की लाइन में टू कैश अकाउंट 10,000 के नीचे डैश है, मतलब वो डेबिट को डैश है और क्रेडिट में अमाउंट लिखी हुई है. ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ईश्वर, ओंकार, वैष्णवी आर गेटिंग. जिनको जो बच्चे इस वक्त लाइव में हैं वो मुझे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So you have to write it as machinery account debit to cash account. Hopefully it is clear. आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट. नंबर टू फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश. फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश rupees 50,000. Now the second transaction is furniture purchase for cash rupees 50,000. बेहतर होगा साथ साथ में आप लोग भी लिखिए. Furniture purchase for cash rupees 50,000. Now here furniture हमने purchase किया और cash हमने paid कर दी. So very first identify the two accounts. The first account you can say there is a furniture, second is a cash. Once you identify the account, the second point is identify the nature of account. So here furniture ये हमारा property है, real account. Cash भी हमारा धन संपत्ति है, asset है, ये हमारा real account. Once you decided nature of account, then the next part is determine whether it is to be debited or credited. So since both the accounts are real account, real का rule क्या है भाई? रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट. नाउ हियर वी परचेज द फर्नीचर. सो इन दिस केस फर्नीचर कम्स इन, इसलिए इसे आएगा डेबिट. एंड कैश गोज आउट, कैश गई इसलिए कैश को आएगा क्रेडिट. आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट. गॉट इट? सो हियर योर एंट्री विल बी, इट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, furniture account debit to cash account 50,000. So that after every entry there is a narration. मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा जाता है. दैट इज कॉल्ड द नरेशन. हाउ इट इज टू बी रिटन? इट इज सिंपली being furniture purchased for cash. Being furniture purchased for cash. ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना एंट्री के नीचे, इसे कहा जाता है नरेशन. इट गिव्स द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन. इसमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती है. नॉर्मली अभी आपने जो फर्नीचर खरीदा तो जो भाई वेंडर है उसका नाम लिखा जाएगा, बट यहाँ आपको दिया नहीं ना किससे परचेस किया. तो नॉर्मल जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब हम लोग लिखते हैं तो हम उसमें लिखते हैं बीइंग द फर्नीचर परचेज फ्रॉम, वो फर्नीचर वाले का नाम, अगेंस्ट बिल नंबर सो एंड सो, एंड अमाउंट पेड इन कैश और बाय चेक, ऐसा लिखा जाएगा नरेशन में. ठीक है, बाद में आपको समझ में आ जाए कि किससे लिया था, उसका बिल नंबर क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इसमें नहीं लिखा था, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3. Is this very clear to you? Yes, Vaishnavi, Priyal, Prerna, Vaishali, Onkar, very good. चलो next, number 3.
computer purchased for cash rupees 40,000. बिल्कुल सिमिलर ट्रांजैक्शन है. कंप्यूटर परचेज, जैसा पहले फर्नीचर परचेज किया था, इस बार हमने कंप्यूटर परचेज किया. सो कंप्यूटर परचेज फॉर कैश. सो वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई द अकाउंट्स. कौन से दो अकाउंट है? एक कंप्यूटर, एक कैश. दोनों रियल अकाउंट है क्योंकि दोनों असेट है. कंप्यूटर कम्स इन, हमने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर कम्स इन, कंप्यूटर का आएगा डेबिट. कैश हमने पेड की, कैश गोज आउट, कैश हमसे गई, कैश को आएगा क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो एंट्री हो जाएगी हमारी. इट्स अ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000. Narration: being computer purchase for cash, being computer purchased for cash. Next, number 4. Onkar, Sumitra, Ishwar, Onkar, well done. Number 4. Building sold for cash rupees 5 lakh. हमने बिल्डिंग बेची सर. वी सोल्ड द बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 लाख. सो ये हमारा ट्रांजैक्शन है. सो आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स. कौन सा अकाउंट आएगा इसके अंदर? एक आएगा बिल्डिंग और एक आएगा कैश. नाउ बिल्डिंग ये हमारी असेट है, रियल अकाउंट. कैश भी रियल अकाउंट. नाउ बोथ आर रियल. नाउ डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट. रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दिस टाइम वी सोल्ड बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बेची है सर. मतलब बिल्डिंग गोज आउट. गोज आउट इसका मतलब बिल्डिंग चल के नहीं जाती है सर, हमारा ओनरशिप गया उसका, मतलब हमसे बिल्डिंग गई. बिल्डिंग गोज आउट, बिल्डिंग को आएगा क्रेडिट. एंड सर हमने बिल्डिंग बेची एंड वी रिसीव्ड कैश. तो इस बार कैश आई, सो इट इज अ कैश कम्स इन. कैश कम्स इन, कैश को आएगा डेबिट. सो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 5 lakh. Narration: being building sold for cash, being building sold for cash. देखो ये वाला जो पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको अंडरलाइन करता हूँ, फिर रियल लिखता हूँ, फिर उसके आगे कम्स इन गोज आउट लिखता हूँ, फिर डीआर से आर लिखता हूँ, डेबिट क्रेडिट लिखता हूँ. ये आपको रियल लाइफ में नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूँ. यू आर इन अ लर्निंग प्रोसेस. हो सकता है कि 5-25 एंट्रीज के बाद हमको ये लिखना पड़े, डायरेक्टली हम लोग एंट्रीज कर पाएंगे हम लोग. ठीक है. सो अभी ये जो भी पार्ट है सर, ये भी हम लोग लिखेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5. vehicle sold for cash rupees 1 lakh. vehicle sold for cash rupees 1 lakh. हमने vehicle बेचा. vehicle sold for cash. So identify the two accounts. One is a vehicle, one is a cash. Identify the nature. Sir, both are my asset. So दोनों real. Now vehicle sold for cash. हमने vehicle बेचा, मतलब vehicle गया. So vehicle goes out. इसे आएगा credit. And cash comes in. Cash को आएगा debit. So entry लिखी जाएगी. Cash account debit to vehicle account 1 lakh. So here being vehicle sold for
cash. Being vehicle sold for cash. I hope it is very clear. Anyone is having any doubt, any query, you can raise it in your chat box. Next. Now back to the first page जहाँ हमने लिखे थे गोल्डन रूल्स. सो आइए सर यहाँ लिखेंगे अब हम लोग पर्सनल का रूल. पर्सनल प्लीज राइट डाउन. जैसे रियल का रूल है डेबिट क्रेडिट करने का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी तरह से. थैंक यू सो मच. मेरी चाय आ गई. सो हियर पर्सनल अकाउंट राइट डाउन. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. सो अगर ट्रांजैक्शन में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को डेबिट करना कि क्रेडिट करना, ये डिपेंड करता है कि आप ये चेक कीजिएगा कि whether that person in that transaction whether he is a receiver or whether he is a giver. If he is a receiver आप उसको डेबिट करेंगे, if he is a giver आप उसे क्रेडिट करेंगे. कैसे? आइए सर देखते हैं यहाँ पर नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6. Write down. Cash paid to Siddhi rupees 5,000. Cash paid to Siddhi rupees 5,000. Now here in this transaction identify the two accounts. The first is a cash and it is paid to Siddhi. हमने कैश पेड की और ये कैश हमने किसे पेड की? इस वक्त सिद्धि को हमने कैश पेड की. सो दिस आर ट्रांजैक्शन. तो आइडेंटिफाई द नेचर. कैश सर ये हमारा प्रॉपर्टी है, इट्स रियल अकाउंट. सिद्धि इज पर्सन, इज अ लाइव पर्सन. सर पर्सन के अंदर वेदर इज अ लाइव पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. सिद्धि is a personal account. Now real का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इस बार हमने कैश पेड की, इसका मतलब सर कैश गोज आउट. कैश गोज आउट तो कैश को आएगा क्रेडिट एंड दिस कैश इज पेड टू सिद्धि. पर्सनल का रूल अभी हमने देखा. पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ट्रांजैक्शन के अंदर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अगर वो व्यक्ति रिसीवर है तो उसे डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो उसे क्रेडिट करो. अभी यहाँ पर हमने कैश पेड टू सिद्धि, हमने सिद्धि को कैश दी, इसका मतलब इन दिस केस सिद्धि इज अ रिसीवर. सिद्धि इज अ रिसीवर, उसे आएगा डेबिट. ठीक है. सो एंट्री हो जाएगी सिद्धि अकाउंट डेबिट to cash account 5,000. Being cash paid to Siddhi. Being cash paid to Siddhi. देखिए ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि that in every transaction both the accounts will be of the same nature, means both will be real, both will be nominal, both will be person. It is not like that. It can be any combination. It can be real personal, it can be personal nominal, it can be real nominal, and sometimes there can be more than two accounts, one real, one nominal, one personal. It can be anything. See, the first 5 transactions जो हमने डिस्कस किया ना, उसमें हमेशा दोनों अकाउंट्स रियल ही थे. ऐसा क्यों था? द सिंपल रीज़न कि मैंने आपके साथ में सिर्फ रियल का ही तो रूल डिस्कस किया था.
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए मैंने दोनों अकाउंट्स रियल के रखे थे। अब धीरे धीरे इसके अंदर वेरिएशंस आते चलेंगे। सो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अकाउंट्स के अंदर, ट्रांजैक्शन अंदर जो दो अकाउंट्स आएंगे वो एक ही टाइप के होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। रादर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, cash received from Sachin, rupees 10,000. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सचिन रुपीज 10,000। हमें सचिन से कैश मिली, हमें सचिन से कैश मिली। सो इन दिस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई द टू अकाउंट, वन इज अ कैश, वन इज अ सचिन। कैश रियल अकाउंट, सचिन एक पर्सन है, सो पर्सनल अकाउंट। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ दिस टाइम कैश रिसीव्ड, सो कैश रिसीव्ड है, सो कैश आई, सो दिस इज कैश कम्स इन, कैश को आएगा डेबिट। और रिसीव्ड फ्रॉम सचिन, सचिन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ दिस टाइम सचिन से हमें कैश आई, सो सचिन इज अ गिवर। सचिन कौन इस केस में, सचिन इज अ गिवर। जैसे पिछले प्रॉब्लम में देखा ना, हमने सिद्धि को कैश दी तो सिद्धि रिसीवर दी। इस बार हमें सचिन से कैश आई तो सचिन इज अ गिवर, बीइंग अ गिवर उससे आएगा क्रेडिट। सो हमारी एंट्री हो जाएगी, इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 10,000, being cash received from Sachin, being cash received from Sachin, is this very clear? Next, number 7, number 8, cash deposited into bank, cash deposited into bank rupees 8,000, cash deposited into bank rupees 8,000। सर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स, वन इज अ कैश एंड वन इज अ बैंक। कैश ये हमारा रियल अकाउंट है, बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट कैन बी एनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, एक्सिस, मर्चेंट्स बैंक्स, एनीथिंग, ठीक है। सो बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सो ये आपका पर्सनल अकाउंट है। नाउ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, सो कैश इन दिस केस कैश गोज आउट, क्योंकि हमने पैसे डिपॉजिट किए, कैश गोज आउट, इसलिए कैश को आएगा क्रेडिट। और ये पैसे हमने कहाँ डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट किए, इट मीन्स बैंक इज अ रिसीवर। पर्सनल का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल्स को अच्छे से ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, वी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इट मींस बैंक रिसीव्ड दैट अमाउंट, सो इन दिस केस बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर, बीइंग अ रिसीवर बैंक को आएगा डेबिट। सो कुल मिलाकर आपकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, being cash deposited into bank, being cash deposited into bank, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश
withdrawn from bank rupees 4,000. Cash withdrawn from bank, हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए. This is a transaction. This is a transaction. So here two accounts, one is a cash, one is a bank. Cash is real account, bank is a personal account. Now cash withdrawn from bank, हम बैंक से पैसे लेके आए, हम बैंक से पैसे लेके आए. It means cash comes in, cash comes in. एंड रियल का रूल है सर डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को आएगा डेबिट. और ये पैसा आप कहाँ से लेके आए? बैंक से विड्रॉ किए. सो बैंक से पैसे लेके आए, इट मीन्स बैंक ने पैसे दिए. इट मीन्स बैंक इज अ गिवर. इन दिस केस बैंक इज अ गिवर, इसलिए बैंक को आएगा क्रेडिट. पर्सनल का रूल, बैंक को पर्सनल का रूल चल लगेगा. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक ने हमें पैसे दिए, बैंक इज अ गिवर, बैंक को आएगा क्रेडिट. सो कुल मिलाकर हमारी एंट्री हो जाएगी, it's a cash account debit, cash account debit to bank account 4,000, cash account debit to bank account 4,000 being cash withdrawn from bank, being cash withdrawn from bank. All clear? Any doubt? Any query? अगर है तो चैट बॉक्स में डालो, अगर क्वेरी नहीं है तो थंब लगा दो. सो आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ रहे हैं. ठीक है. नंबर 10, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर बाद में हमारे देसरदा भंडारी प्रोफेशनल एकेडमी के ऐप पर देख रहे होंगे या फिर हमारे पेन ड्राइव पर देख रहे होंगे, जिन्होंने लेक्चर बाय किया होगा. अगर उन बच्चों को क्वेरी है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वो क्वेरी भेज सकते हैं. ठीक है. डेफिनेटली आई विल रिवर्ट योर आंसर विद इन 24 आवर्स. और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नोट्स के हर पेज पर यहाँ पर नंबर है. यहाँ पर आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. क्वेरी भेज सकते हैं. आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपना रिप्लाई इसके ऊपर जरूर भेज सकते हैं. ठीक है. यस, ऋषभ, चेतन, वैशाली, अथर्व, ओंकार, पार्थ, ऑल क्लियर. वेल डन. नेक्स्ट, अगला नंबर 10, check of rupees 7,000 received from Milind. Check of rupees 7,000 received from Milind. हमें मिलिंद से 7,000 रुपए का चेक आया. हमें मिलिंद से 7,000 रुपए का चेक आया. अब यहाँ पर दो अकाउंट्स सर, यहाँ पर एक तो मिलिंद है और दूसरा हमें चेक आया. अभी चेक आया तो चेक का हम लोग क्या करेंगे सर? अल्टीमेटली व्हाट विल डू, मिलिंद ने हमें चेक दिया तो हम लोग क्या करेंगे? उस चेक को लेके हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. चेक को अपने जेब में तो नहीं रखेंगे, उस चेक को हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. सो प्लीज डू रिमेंबर, जब भी हम चेक कहते हैं ना सर, इसका मतलब है कि हम लोग एक्चुअली वो चेक बाद में बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं. सो चेक रिप्रेजेंट्स योर बैंक अकाउंट. बराबर है. सो यहां पर क्या होगा सर? ये मिलिंद है, उसने हमें चेक दिया, उसने हमें चेक दिया कितने का है? ऑफ रुपीज 7,000. और वो चेक हम लोग क्या करेंगे? वो चेक हम हमारे बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से हो गए? दो व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पर? वन इज दिस मिलिंद, हैंड्स अप, एंड दिस बैंक. अब यहाँ पर हमें मिलिंद से चेक आया और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. बराबर है. तो इस केस में मिलिंद पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है. नो मिलिंद ने चेक दिया, सो मिलिंद इज अ गिवर और वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. मतलब आर बैंक विल रिसीव द अमाउंट.
पैसे तो हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे ना. सो इन दिस केस आवर बैंक इज अ रिसीवर. और भाई साहब, ओ भाई साहब, हमारा पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो इन दिस केस हमारी बैंक इज अ रिसीवर, बैंक को आएगा डेबिट, मिलिंद को आएगा क्रेडिट. आप एक देख लीजिए यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट आपके पर्सनल आए. हालांकि दोनों पर्सनल आना चाहिए, दोनों रियल आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है सर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो कुल मिलाकर आपकी एंट्री हो जाएगी. इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू मिलिंद अकाउंट. प्लीज राइट डाउन. बैंक अकाउंट डेबिट टू मिलिंद अकाउंट 7,000 being check received from Milind. Check received from Milind. Being check received from Milind. I don't think किसी को कोई आपत्ति होगी, किसी को कोई डाउट होगा. क्लियर ना? नेक्स्ट, नंबर 11. check of rupees 4,000 received from Namrata. Let us joining it. चेक ऑफ रुपीज 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम नम्रता. अगेन मैंने रिपीट लिया ट्रांजैक्शन ताकि क्लियरिटी आ जाए. हमें नम्रता से चेक आया, तो दिस चेक अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिपॉजिट इनटू द बैंक. सो चेक आपके बैंक को रिप्रेजेंट करता है. हमें चेक किससे आया? नम्रता से आया. तो यहाँ पर दो अकाउंट्स, वन इज अ बैंक एंड वन इज अ नम्रता. सो दोनों कौन है सर? दोनों पर्सनल अकाउंट है. नम्रता इज अ लाइव पर्सन, जिंदा व्यक्ति. बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. नाउ नम्रता ने एक चेक दिया. सो इन दिस केस नम्रता ने हमें चेक दिया. नम्रता इज अ गिवर. वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे. सो अल्टीमेटली आवर बैंक इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट. सो हमारी बैंक को पैसे मिल जाएंगे. सो इन दिस केस बैंक इज अ रिसीवर. सो यहाँ बैंक को आएगा डेबिट, नम्रता को आएगा क्रेडिट. सो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट. आई थिंक मैंने कैश बोल दिया शायद से. बैंक अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट 4,000 being check received from Namrata. Being check received from Namrata.
बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम नम्रता, जहाँ तक हो सके सर हमारा नरेशन अमाउंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 12, अगला चेक ऑफ रुपीज 8,000 issued to Sahil. चेक ऑफ रुपीज 8,000 issued to साहिल। अभी जैसे मैं लास्ट टाइम नम्रता से मिलिन से चेक आया था, उसी तरह से इस बार हमने चेक दिया। लास्ट टाइम चेक आया था, इस बार हमने चेक दिया, ठीक है। और ये चेक हमने किसको दिया? साहिल को दिया। सो यहाँ पर दो व्यक्ति कौन है? वन इज अ साहिल एंड वन इज अ चेक। चेक का मतलब कौन? बैंक। अभी हमने चेक साहिल को दिया, साहिल पर्सनल अकाउंट एंड बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट। साहिल को चेक दिया मतलब साहिल इज अ रिसीवर, साहिल इज अ रिसीवर, उसे आएगा डेबिट। और ये हमने चेक दिया मतलब जो साहिल को हमने चेक दिया, तो साहिल को तो हमने चेक दिया, तो साहिल को पैसे कौन देगा? साहिल को पैसे देगा हमारी बैंक। हमारी बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाएगी। सो इन दिस केस आवर बैंक विल बी गिवर, और बीइंग अ गिवर बैंक को आएगा क्रेडिट। सो कुल मिलाकर हमारी एंट्री जो होगी, हमारी एंट्री जो होगी इट इज साहिल अकाउंट डेबिट, साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। being check issued to Sahil, being check issued to Sahil, is it? Next, come to your पेज नंबर 1। एक रूल ऐड कर दिया यहाँ पर, और फिर बाद में हम सबका कॉम्बिनेशन डिस्कस करते रहेंगे। द थर्ड इज अ नॉमिनल, थर्ड इज अ नॉमिनल। सर दो रूल्स हमने देखे थे, रियल पर्सनल, डजन बार हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया उसके ऊपर। नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है? इट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all income and gains, debit all expenses and losses, credit all income and gain। तो आपके ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट है तो प्लीज चेक, एंड इफ इट इज इनकम, इफ इट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस, उसे आप डेबिट कर दें, और अगर इनकम या गेन है तो उसे आप क्रेडिट कर दें, ठीक है। So let's come to this, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे भी। I hope you have written this, debit all expenses and losses, credit all income and gain। Come to number 13। Number 13, salary paid in cash rupees 5,000, salary paid in cash rupees 5,000। now salary paid in cash, so सबसे पहले identify the two account। what are the two accounts? one is a salary, one is a cash। अब सैलरी हमने बिजनेस के सिलसिले में हमने सैलरी पेड की, ये हमारा क्या है? ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। सो ये हमारा एक्सपेंडिचर। बिफोर दैट, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश ये हमारा रियल अकाउंट है। तो हमने जो सैलरी पेड की ये हमारा एक्सपेंडिचर है। बीइंग एक्सपेंडिचर इससे आएगा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है इसलिए सैलरी को आएगा डेबिट। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
इस बार हमने सैलरी पेड की तो हमसे कैश गई, कैश को आएगा क्रेडिट। सो कुल मिलाकर हमारी एंट्री हो जाएगी, इट्स अ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। Salary account debit to cash account, being salary paid in cash, being salary paid in cash, being salary paid in cash. Got it? Next, number 14. Traveling expenses paid rupees 10,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड रुपीज़ 10,000। ऑफकोर्स ये हम बिजनेस के सिलसिले में क्या हुआ, ट्रैवलिंग है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड रुपीज़ 10,000। तो सबसे पहले दो अकाउंट्स, वन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपको कहा है कि पेड 10,000। अरे भाई साहब पेड है, हमने दिए मतलब ये क्या दिया सर, दिया मतलब हमने क्या दिया, हमने कैश दिया यहाँ पर, ठीक है। सो भले यहाँ पर कैश दिया ना हो, लेकिन सर हमने दिया। अब दिया सर मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हमने कोई किडनी निकाल के दी, दांत तो निकाल के नहीं दिए। सो डेफिनेटली व्हेन वी से पेड इट मीन्स इट इज़ अ कैश पेड। गॉट इट? सो यहाँ पर आपके जो दो अकाउंट्स आएंगे, वन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड वन इज योर कैश। नाउ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये आपका क्या है, नाम में ही दिया सर, ये क्या आपका एक्सपेंडिचर है। सो बीइंग एक्सपेंडिचर इसे आएगा डेबिट, और हमने कैश दी मतलब कैश गोज आउट, कैश को आएगा क्रेडिट। सो कुल मिलाकर आपकी एंट्री हो जाएगी, इट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, being paid for traveling expenses, being paid for traveling expenses. Next, 15. Rent paid rupees 9,000। अब आप लोग एंट्री बताएं इसकी, और आप खुद लिखने की कोशिश करें।
Have you passed the entry? So it is a rent account debit to cash account. हमने रेंट पेड किया, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर, बीइंग एक्सपेंडिचर रेंट को आ गया डेबिट, और हमसे कैश गई, कैश गोज आउट, कैश को आया क्रेडिट. सो बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड. सर आप रेंट पेड इन कैश, बाय कैश लिखे ना लिखे, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. नेक्स्ट नंबर 16, rent received in cash rupees 8,000. Rent received in cash rupees 8,000. Now rent received in cash rupees 8,000. Now this time rent is received. Rent is received. तो दो अकाउंट्स कौन से हो गए यहाँ पर? सबसे पहले वन इज अ रेंट, वन इज अ कैश. योर कैश इज रियल अकाउंट एंड रेंट इज योर नॉमिनल अकाउंट. नाउ दिस टाइम रेंट रिसीव्ड, तो ये आपका इनकम हो गया, राइट. सो बीइंग अ इनकम, इसे आएगा क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इस बार में रेंट मिला है, रेंट मिला है मतलब रेंट हमारा इनकम है, रेंट को आएगा क्रेडिट. एंड कैश, हमें रेंट मिला इन कैश, मतलब कैश हमें मिल गई, सो कैश कम्स इन, कैश को आएगा डेबिट. सो कुल मिलाकर हमारी एंट्री हो जाएगी, वैशाली योर एंट्री विल बी, it's a cash account debit to rent account. सर रेंट अगर हमने पेड किया तो हमारा एक्सपेंडिचर है, उस वक्त रेंट को डेबिट आएगा, लेकिन रेंट अगर हमें मिला तो हमारा इनकम है, उसे क्रेडिट आएगा. सो 8,000 8,000 being rent received, being rent received. आप चाहे तो सर इसके आगे इन कैश लगा दें, नहीं लगा फर्क नहीं पड़ता. रिसीव्ड है, इसी का मतलब सर कैश मिल चुकी है. बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश. नेक्स्ट नंबर 17, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक. कमीशन रिसीव्ड बाय चेक रुपीज 5,000. कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, हमें कमीशन मिला एंड इट इज रिसीव्ड बाय चेक. तो सबसे पहले दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, वन इज अ कमीशन, वन इज अ चेक. चेक रिप्रेजेंट्स योर बैंक. अब हमें कमीशन मिला तो ये हमारा इनकम है, तो इनकम वाला अकाउंट कौन सा हो गया? नॉमिनल. इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, ये कहाँ कवर होते हैं? नॉमिनल. सो ये कमीशन को मिला, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट. नाउ कमीशन रिसीव्ड, ये हमारा क्या है? इनकम है. और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. हमें कमीशन मिला तो ये हमारा इनकम है, इसे आएगा क्रेडिट. और हमें क्या मिला सर? हमें कमीशन के लिए क्या मिला? चेक मिला. तो जो चेक हमें मिला वो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? दैट चेक विल डिपॉजिट इनटू द बैंक, और वो कमीशन हमारा बैंक में जमा हो जाएगा. इट मीन्स आवर बैंक विल रिसीव दिस अमाउंट. सो बैंक इज अ रिसीवर. सो ये बैंक हमारा जो कि पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज अ रिसीवर. बीइंग अ रिसीवर, बैंक को आएगा डेबिट. सो कुल मिलाकर हमारी एंट्री हो जाएगी, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000. Being commission received by check, being commission received by check.
Next, number 18. Paid for advertising, paid for advertisement by cash. Rupees 6,000. Paid for advertisement by cash नहीं सर बेटा, by check करो यहाँ पर, by check. Paid for advertisement by check. एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने चेक से पेमेंट किया. सो दो अकाउंट कौन से? वन इज एडवर्टाइजमेंट, वन इज अ चेक. चेक मतलब बैंक. नो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पेड किया, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बैंक ये हमारा पर्सनल अकाउंट है. एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पेमेंट किया, सो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एडवर्टाइजमेंट हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, बीइंग एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट का आएगा डेबिट. और पेमेंट हमने चेक से किया, सो बैंक, सो अल्टीमेटली आर पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक. सो इन दिस केस आर बैंक इज अ गिवर, बैंक पेमेंट करेगी. सो पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक इज अ गिवर, बैंक को आएगा क्रेडिट. सो कुल मिलाकर एंट्री हो जाएगी आपकी, इट्स एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट to bank account 6,000 being paid for advertisement by check. Being paid for advertisement by check. Next, number 19. Personal traveling expenses paid in cash rupees 10,000. Now personal traveling expenses paid. Now do remember sir, traveling दो टाइप का हो सकता है. एक जो ट्रैवलिंग हम लोग बिजनेस के सिलसिले में करते हैं, बिजनेस के लिए हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, सो वो ट्रैवलिंग. और एक दूसरा होता है सर हमारा पर्सनल ट्रैवलिंग. सो किसी मौके पर हमने कहीं घूमने चले गए, कहीं रिश्तेदार के यहाँ शादी है वहाँ चले गए, सो देयर कैन बी पर्सनल ट्रैवलिंग ऑल्सो. अभी जो पर्सनल ट्रैवलिंग है इसके लिए भी तो पैसा बिजनेस में से ही उठाते हो, बिजनेस की कैश बॉक्स से उसी में से पैसे ले लेते हो. सो नाउ इन दिस केस डू रिमेंबर, यहाँ आपने भले ही ट्रैवलिंग किया है, भले ही आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, बट दिस इज नॉट फॉर बिजनेस, दिस इज फॉर ओनर. ये ओनर ने अपने खुद के पर्पस के लिए किया हुआ है, ओनर ने उसके अपने खुद के पर्पस के लिए. दिस हैज नथिंग टू डू विद योर बिजनेस. लेकिन आपने बिजनेस से कैश ली, और किसने पैसे लिए? ये ओनर ने लिए. सो डू रिमेंबर, व्हेनेवर ओनर विड्रॉ द अमाउंट, व्हेनेवर ओनर विड्रॉ द अमाउंट, that will be treated as a owner's drawing. It will be treated as a owner's drawing. So ओनर पैसे लेके गया, इसलिए ओनर को डेबिट आएगा. ओनर के लिए पैसा आपने दिया, ओनर ने आपके बिजनेस से पैसे लिए, सो ओनर को डेबिट आएगा. लेकिन जो ओनर ने पैसे लिए पर्सनल पर्पस को, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं. इसलिए बेटा ध्यान रखना है, इस केस में ओनर ने पैसे लिए, ओनर इज अ रिसीवर, ओनर को डेबिट आएगा, बट इसको एक टर्म होता है, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स. सो इस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी, इट्स अ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इट्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगर ये आपका ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए होता तो अनडाउटेडली हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, बट इस बार ट्रैवलिंग आपके बिजनेस के लिए नहीं, आपका व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तो पर्सन को डेबिट होगा, मतलब ओनर को डेबिट होगा. तो ओनर के डायरेक्टली ओनर नाम को डेबिट नहीं करते सर, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है. कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग. दैट्स व्हाई डेबिट हमने ड्राइंग्स को किया हुआ है.
सो नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग, being paid for personal traveling. Next, number 20. Furniture purchased and amount paid by check. Rupees 20,000. Furniture purchase and amount paid by check 20,000. So again two accounts, furniture and check. फर्नीचर रियल अकाउंट, चेक पर्सनल अकाउंट. फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर को आएगा डेबिट, और हमने पेमेंट बाय चेक किया. सो इन दिस केस अल्टीमेटली अमाउंट विल बी पेड बाय बैंक. सो बैंक इज अ गिवर, बैंक को आएगा क्रेडिट. सो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 20,000. Furniture account debit to bank account 20,000. Next, 21st. Computer sold and amount received by check. Rupees 15,000. Computer sold and amount received by check 15,000. हमने कंप्यूटर सेल किया, कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गोज आउट, कंप्यूटर का आएगा क्रेडिट, और हमें चेक मिल गया. सो अल्टीमेटली वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे. सो आर बैंक विल रिसीव द अमाउंट. सो बैंक इज अ रिसीवर. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन पास द एंट्री. इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, $15,000 to computer account 15,000. Being computer sold, being computer sold and amount received by check, being computer sold and amount received by check. Next, number 22. धीरे धीरे कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे अब, ठीक है. राइट डाउन. कंप्यूटर सोल्ड for rupees 15,000 and amount received in cash rupees 5,000 and balance by check rupees 10,000. कंप्यूटर सोल्ड फॉर 15,000. सो महाराज हमने कंप्यूटर बेचा, कितने में बेचा? 15,000 में. और उसके जो पैसे हमें आए उसमें सर हमें कैश आई 5,000 और चेक आया 10,000. तो बेसिकली ऐसा भी तो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि भाई कुछ पैसे में कैश में आ जाए, कुछ हमको चेक में आ जाए. क्वाइट पॉसिबल. नाउ सी दैट. तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के ट्रांजैक्शन में
सो वेरी फर्स्ट विल फाइंड कंप्यूटर सोल्ड. सो एक अकाउंट हमारा कौन सा आ गया, कंप्यूटर आ गया. सर कंप्यूटर रियल अकाउंट, कंप्यूटर गोज आउट, कंप्यूटर का आएगा क्रेडिट. कंप्यूटर हमने बेचा और हमें क्या मिला सर, हमें कैश आई. सो दिस कैश इज ऑल्सो वन ऑफ द अकाउंट. कैश सर यहां पर कैश आई, कैश कम्स इन, कैश को आएगा डेबिट. कितना, 5000. कंप्यूटर हमने दिया फॉर 15,000. एंड डू रिमेंबर दिस टाइम सर हमें चेक भी तो आया. चेक हमारा पर्सनल अकाउंट, हमें चेक आया, वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे. सो इन दिस केस आवर बैंक इज अ रिसीवर, इसलिए बैंक को आएगा डेबिट. कितना, 10,000. ओहो, इसका मतलब ये हो गया सर इस बार अगर आप गौर से देखें तो दो डेबिट आएंगे. कैश को भी डेबिट आएगा 5000, बैंक को भी डेबिट आएगा 10,000 और क्रेडिट आएगा कंप्यूटर को 15,000. सो दो डेबिट और एक क्रेडिट, ऐसे 3 अकाउंट्स आ गए इस बार. सो एंट्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एंट्री हो जाएगी इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 to computer account 15,000. Being computer sold and amount received by cash and check, and amount received by cash and check. Is this very clear? All students please reply yourself. क्योंकि हमारा पहला ट्रांजैक्शन जहां पर हमने एक अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए. तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जितने नंबर ऑफ डेबिट है उतने ही नंबर ऑफ क्रेडिट्स रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है. ज़रूरी ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड योर टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट इट मस्ट बी सेम. तो अगर आपका 15,000 रुपये का डेबिट है तो 15,000 रुपये का क्रेडिट होना चाहिए. नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट इट कैन बी डिफरेंट, नो प्रॉब्लम. Here one query is that I am 12th student and can I see online lectures, and अगर offline भी start हुए तो lecture देख सकते हैं क्या? Yes बेटा, that facility is available with us. We are having lectures for 11th, for 12th. Myself I am teaching for CA Foundation, for CA Intermediate also. हमारे पास all type के lectures available है. So you can contact on this number, ठीक है? And I will share the other details. Okay? Yes, Chetan, Rishabh, Athar, Sahil, एकदम clear. Very good. चलिए next. Number 23. Machinery sold for 50,000. Sold for 50,000 and amount received rupees 20,000 in cash and 30,000 by check. सेम ट्रांजैक्शन सर, हमने मशीनरी बेची 50,000 में, मशीनरी गोज आउट, मशीनरी को आएगा क्रेडिट 50,000 रुपये, और हमें क्या मिला, हमें मिली कैश, कैश कम्स इन, कैश को डेबिट 20,000, 30,000 का चेक मिला. सो बैंक इज अ रिसीवर, बैंक को आएगा डेबिट 30,000 और ये मशीनरी को आएगा क्रेडिट 50,000. सो हियर वी कैन पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट
हमें कैश मिली है, कैश कम्स इन, कैश को डेबिट 20,000, हमें चेक मिला, सो अल्टीमेटली पैसे हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक को डेबिट 30,000 टू मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी बेची, सो मशीनरी गोज आउट, मशीनरी को आएगा क्रेडिट 50,000. नरेशन बीइंग machinery sold and amount received by cash and check. 23 हो गए सर, 25 कर लेंगे and they will stop. Next, number 24. Looking up, vehicle purchased, for rupees 60,000 and amount paid in cash 40,000 and by check rupees 20,000. In cash 40,000 and by check for 20,000. So इस बार आपने व्हीकल परचेज किया, सो व्हीकल कम्स इन, व्हीकल को आएगा डेबिट, कितने का व्हीकल है आपका 60,000 का, सो एंट्री हो जाएगी व्हीकल अकाउंट डेबिट 60,000 एंड अमाउंट पेड इन कैश 40,000, हमने कैश दी 40,000, हमने कैश दी, मतलब कैश गोज आउट, कैश को आएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट 40,000 और बैलेंस हमने दिया चेक से 20 रुपये का हमने चेक दिया, सो बैंक इज अ गिवर, बैंक पेमेंट करेगी, बैंक इज अ गिवर, पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज अ गिवर, सो दिस इज टू बैंक अकाउंट 20,000. Narration being vehicle purchased and amount paid in cash and check. इस बार आप देखेंगे एक डेबिट दो क्रेडिट तो चलता है सर, नो प्रॉब्लम. नंबर ऑफ डेबिट क्रेडिट कितनी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल डेबिट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट 60,000 क्रेडिट भी 60,000, ये इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. नेक्स्ट नंबर 25 और फिर इस सेशन में हम लोग रुक जाएंगे. इन टोटल आई एक्सपेक्ट टू डिस्कस अराउंड 80 to 100 एंट्रीज. सो एक बार हम 70-80 ट्रांजैक्शन 100 अराउंड ट्रांजैक्शन अगर हम लोग डिस्कस कर लेना तो फिर आपको बेसिक अकाउंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सारा अकाउंट का खेल जो है ना इस जर्नल एंट्री पर डिपेंड करता है. जिसे जर्नल एंट्री पास करने आ गई सर उसी को आगे अकाउंट्स आएगा. एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेन आई टेल यू सर, रियल लाइफ में हमारा क्लाइंट चाहे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, हु एवर इट मे बी, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज के प्रिंसिपल्स यही होते हैं. इसलिए एक बार हम लोग अराउंड अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन अगर अराउंड 100 ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर लें तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. एंड वंस यू अंडरस्टूड हाउ टू पास द एंट्री देन आगे अकाउंटिंग बहुत सिंपल है. ठीक है. सो डरने का कोई कारण नहीं है बेटा. नेक्स्ट नंबर 25 साहिल कहता है सर आप सिखाओ और क्लियर ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. लिख बेटा नंबर 25 building purchased, for rupees 3 lakh
and amount paid and equal amount paid in cash and check. Equal amount paid in cash and check. सो 3 लाख की बिल्डिंग हमने परचेस की, इक्वल पेमेंट हमने कैश और चेक से किया, मतलब 1.5 लाख रुपए सर, सिंपल सी बात है. सो हमारी एंट्री हो जाएगी, हमने बिल्डिंग परचेस की, बिल्डिंग कम्स इन, बिल्डिंग को डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख. हमने कैश दी, कैश गोज आउट, सो इट्स अ टू कैश अकाउंट 1,50,000. हमने 1.5 लाख रुपए का चेक दिया, सो अल्टीमेटली पेमेंट विल बी मेड बाय आवर बैंक, सो इट्स अ टू बैंक अकाउंट 1,50,000. being building purchased and amount paid in cash and by check. Okay, so friends, with this we'll stop here, and do remember in next session again we'll discuss few more entries, different type के transactions, खास करके business में जो goods purchase करते हैं, goods sale करते हैं, sometime what are the goods we purchase, we return the goods to supplier, then sometime when we sell the goods returned by our customer, then sometime we are making the payment to supplier but we receive the discount, sometime we receive the amount from our debtor and we are giving the discount to him, how it is to be recorded, business started, we brought the capital to the business, how it is to be recorded. ठीक है, so ये सारे ट्रांजैक्शन जो है ये हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. डोंट मिस माय नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच, बाय बाय.